The Nehru Report, and Jinnah's 14 points. The Nehru Report, 1928, and Jinnah's 14 points, 1929, represent a critical turning point in the history of the subcontinent. While the Nehru Report was the Congress's attempt to outline a future constitution, Jinnah's 14 points were a direct response to address what Muslims felt were significant gaps and threats in that report. The Nehru Report was seen by the Muslim League as a majoritarian document that favored the Hindu majority. In contrast, Jinnah's 14 points were a safeguard document designed to ensure that, in a future independent India, Muslims would be equal partners, rather than a permanent political minority. This disagreement eventually led to the parting of the ways between the two major political forces. The Nehru Report was a major disappointment for the Muslim League. By removing the protections gained in earlier agreements, like the Lucknow Pact, it created a deep sense of insecurity among Muslims. This led Muhammad Ali Jinnah to reject the report and present his 14 points, which ultimately set the stage for the demand for a separate homeland. Both Jinnah and Nehru shared a common vision for a modern, democratic India in these areas. Both demanded that India should be governed by Indians, dominion status. यानी इंडिया की हुकूमत हिंदुस्तानियों के हाथ में होनी चाहिए ना कि बरतानवियों के पास. Every citizen should have basic rights like freedom of speech, assembly, and protection under the law. Both documents agreed that Sindh should be separated from Bombay, though Nehru added financial conditions that Jinnah found unnecessary. सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो जियोग्राफी और कल्चर के लिहाज से बिल्कुल अलग था. नेहरू ने कहा कि सिंध को अलग तोह कर दे, लेकिन पहले ये सबमिट करो कि सिंध अपने इकरारात खुद उठा सकता है. नेहरू का डर ये था कि अगर सिंध अपनी कमाई से अपना निज़ाम नहीं चला सका, तो मरकजी हुकूमत पर बोझ पड़ जाएगा. जिन्ना इस शर्त के सख्त खिलाफ थे. उनका कहना था कि सिंध का अलग होना उसकी सियासी पहचान का मसाला है, न कि किसी मुनाफे का. वो जानते थे कि सिंध एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और इसे अलग करने से मुस्लिम्स की ताकत बढ़ाएगी. Both agreed that these regions deserved political reforms and a status equal to other provinces. इन इलाकों को बैकवर्ड कहकर उन्हें बाकी सूबों जैसे हुकूक नहीं दिए गए थे. पंजाब या बंगाल में तो असेंबलीज थीं, लेकिन NWFP और बलूचिस्तान में चीफ कमिश्नर का राज था. इन्हें वो डेमोक्रेटिक राइट्स हासिल नहीं थे जो बाकी इंडिया को थे. Both envisioned a state where there was no official religion and everyone was free to practice their faith. जिन्नाह का मकसद ये था कि मजहब हर इंसान का शख्सी मामला होना चाहिए, रियासत का नहीं. नेहरू सबकॉन्टिनेंट को एक जदीद सेक्युलर डेमोक्रेसी के तौर पर देखते थे, जहां साइंस और अकल को मजहब पर फौकियत हासिल हो, ताकि मुल्क तरक्की कर सके. The parting of the ways happened because of these three fundamental differences. Nehru wanted a unitary system. नेहरू का ख्याल था कि इंडिया जैसा बरहा और मुख्तलिफ रंगों वाला मुल्क तभी एक रह सकता है जब मरकजी हुकूमत के पास सारी बुनियादी ताकत हो. वो चाहते थे कि दिल्ली से पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जाए ताकि नेशनल यूनिटी बरकरार रहे. Jinnah wanted a federal system. जिन्ना एक ऐसा फेडरल सिस्टम चाहते थे जहां सूबों को ज्यादा से ज्यादा आज़ादी और इख्तियारत हासिल हो. जिन्ना जानते थे कि सेंटर में हमेशा हिंदू एक्सरियत होगी, इसलिए मुस्लिम्स की ताकत सिर्फ उन सूबों में महफूज रह सकती थी जहां उनकी अपनी एक्सरियत थी. Nehru proposed joint electorates. नेहरू का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर वोट दें, इससे नेशनल यूनिटी पैदा होगी. Jinnah insisted on separate electorates. जिन्नाह का कहना था कि अगर जॉइंट इलेक्टोरेट हुआ, तो एक्सरियत हमेशा अपनी मर्जी का मुस्लिम कैंडिडेट चुन लेगी, ऐसा शख्स जो सिर्फ नाम का मुस्लिम हो लेकिन उनकी मर्जी पर चले. Nehru said representation should be strictly based on population. मुस्लिम्स की आबादी पूरे इंडिया में तकरीबन 25% थी. नेहरू चाहते थे कि उन्हें 25% सीट्स हाई मिले. नेहरू का ख्याल था कि अगर किसी ग्रुप को उसकी आबादी से ज्यादा सीट्स दी गई, तो ये डेमोक्रेसी के असूलों के खिलाफ होगा. Jinnah demanded 1/3 representation for Muslims in the central legislature. जिन्नाह जानते थे कि अगर मुस्लिम सिर्फ 25% रहे, तो वो हमेशा परमानेंट माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे और कभी कोई लॉ
या तब्दीली नहीं रोक सकेंगे। नेहरू रिपोर्ट का मुतालबा था कि ब्रिटिश इंडिया के सूबों की बाउंड्रीज को दोबारा खींचा जाए और नए सूबे जबान की बुनियाद पर बनाए जाएं। जिन्नाह का डर ये था कि अगर जबान की बुनियाद पर सूबों को तोड़ा गया तो पंजाब और बंगाल जैसे बारे सूबे, जहां मुस्लिम्स की अक्सरियत थी, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। जिन्नाह के मुताबिक अगर किसी सूबे में किसी कम्युनिटी, मसलन मुस्लिम्स या हिंदूज, की आबादी बहुत कम है तो उन्हें उनकी आबादी के तनासुब से ज्यादा सीट्स दी जाएं। जिन्नाह ने ये शर्त राखी कि अगर कोई ऐसा बिल असेंबली में पेश हो जो किसी मखसूस कम्युनिटी के मजहब, कल्चर या पर्सनल लॉज पर असर डालता हो तो इसे पास करने के लिए इस कम्युनिटी के 75% रुकन की रजामंदी जरूरी होगी। जिन्नाह ने मुतालबा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी जाए कि मुस्लिम्स को तमाम सरकारी नौकरियों में उनका एडिक्वेट शेयर दिया जाएगा। मुस्लिम्स जदीद तालीम में थोड़ा पीछे थे। जिन्नाह जानते थे कि अगर सिर्फ ओपन मेरिट पर नौकरियां दी गईं तो मुस्लिम्स माशी तौर पर पीछे रह जाएंगे और सिस्टम में उनका असर व रसूख खत्म हो जाएगा। जिन्नाह का मानना था कि जब तक पुलिस, फौज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में मुस्लिम्स मौजूद नहीं होंगे तब तक उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कागजी बातें रहेंगी। नेहरू के मुताबिक नौकरियां सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर होनी चाहिए। उनका ख्याल था कि किसी मजहब के लिए कोटा रखना मुल्क की तरक्की के लिए नुकसानदेह है। जिन्नाह चाहते थे कि मुस्लिम्स को अपनी ज़बान, तालीमी इदारे और शख्सी कवानीन पर मुकम्मल इख्तियार हो। नेहरू का ख्याल था कि जब स्टेट सेक्युलर होगी तो कल्चर खुद बाखुद महफूज हो जाएगा। जिन्नाह ने ये शर्त राखी कि मरकाजी असेंबली आइन में कोई भी तब्दीली इस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक इंडिया की तमाम रियासतों या सूबों की रजामंदी शामिल न हो। अगर मरकाजी असेंबली को तब्दीली का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया तो वहां बैठी हुई अक्सरियत किसी भी दिन एक नया कानून पास करके मुस्लिम्स के तमाम 13 हुकूक खत्म कर सकती है। आइए इन तमाम नुकात का एक साथ खुलासा करते हैं। फेडरल सिस्टम, विफाकी निज़ाम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तरी, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, अक़लियतों की मुअस्सर नुमाइंदगी, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, मरकाजी मजलिसाए कानून साज में मुसलमानों की नुमाइंदगी, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, जुदागना तारिकाए इंतिखाब, नो टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन टू अफेक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम इक्सायत को मुतासिर करने वाली इलाकाई तब्दीलियों की मुमानत, फुल रिलीजियस लिबर्टी, मुकम्मल मज़हबी आज़ादी, लेजिस्लेशन अपोज्ड बाय 3/4 ऑफ अ कम्युनिटी, किसी भी कयम की 3/4 मुखालिफत पर कानून साजी की मुमानत, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, सिंध की बॉम्बे से अलहीदगी, रिफॉर्म्स इन NWFP इन बलोचिस्तान, सूबा सरहद और बलोचिस्तान में इस्लाहत, मुस्लिम शेयर इन स्टेट सर्विसेज, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड एजुकेशन, मुस्लिम सकाफत और तालीम का तहफ़्फ़ुज़, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन कैबिनेट्स, कबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी, नो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स, रियासतों की मर्जी के बगैर आइन में तब्दीली की ममानत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।